Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, friends, we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 23314444, 23717106 and 2342 1050. And if you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I am Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor in Hindi, Vibhuti Kumar Mishra. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज शनिवार है और हम आपके प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु याद दिला दें कि हम इस कार्यक्रम में किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। प्रश्न पूछने के लिए हमारे नंबर्स हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23421050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं बाजार विश्लेषक शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा अनेजा डेंग। Yes, the headline first. Thank you, Vibhuti. Domestic share indices witnessed gains of about 1% in the week ended yesterday. Sensex closes above 62,250. Nifty settles above 18,500. And U.S. markets remain almost constant in a holiday-shortened trading week. प्रमुख घरेलू सूचकांक में कल 1% की वृद्धि दर्ज हुई। सेंसेक्स 62,250 के ऊपर, जबकि निफ्टी 18,500 के स्तर के ऊपर बंद हुआ और अमेरिकी बाजार छुट्टियों के कारण स्थिर बने रहे। और कल समाप्त हुए सप्ताह में भारतीय शेयर बाजारों में 1% की वृद्धि देखी गई और सेंसेक्स रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचकर बंद हुए। यह वृद्धि वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेतों के चलते और फेड मिनटों के परिणाम में धीमी दर वृद्धि, विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीदारी, F&O समाप्ति, अमेरिकी डॉलर और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण आई। सप्ताह के दौरान बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1% की बढ़त से 630 अंकों की तेजी दर्ज करता हुआ 62,294 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1.1% की तेजी से 205 अंक बढ़कर 18,513 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 2% बढ़ा और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% की वृद्धि देखी गई। Well, it's often said that Sensex is a barometer of a country's economic progress. If that is true, Vibhuti, I think we are doing exceptionally well. Some pessimist people were wondering if we would go beyond 60. And we always had experts when we were talking about 50,000 plus Sensex at that point. Many of our experts said, nahi, 62 ke paar jayega, 60 ke paar jayega. At that time, we were actually a little pessimistic ki वाकई जाएगा कि नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है that
fact is that it's actually gone beyond 62, and that's a sign of a robust economy. It's very heartening. It also boosts the investors' confidence in our country and in the economic situation of our country. And much as some of the pessimists, I may call them, go tom-tomming about the fact that, oh, rupee and mehengai and things like that. But the fact is, we and our rupee is doing far, far better compared to other currencies of the world. We know what is happening in our neighboring countries. So taking a cue from that, we know that we are doing exceptionally well. Our growth rate is very high, and our growth rate also has been predicted very well. Let me take this forward in the English version of the weekly Sensex report, which Vibhuti ji, जो आपने पढ़ा, हम उसका English version पढ़ते हैं. Indian benchmark indices gained 1% and hit record levels in the week ended yesterday amid positive cues from global markets led by outcome of Fed minutes stating lower rate hikes, FII buying, FNO expiry, falling US dollar and crude oil prices. For the week, the BSE Sensex rose 630 points or 1% to end at 62,294, while Nifty 50 added 205 points or 1.1% to close at 18,513 levels. In the broader market, BSE Mid-Cap Index rose nearly 2%, while the small cap index added 1.5%. So we were just talking about the investors' confidence when the Sensex has touched 62,000 plus. It touched yesterday, in fact, and that's really it boosts our confidence as an investor and as a citizen. So this is a really great story to begin with. What do you think, Vibhuti ji? अच्छी बात है कि बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि ये शेयर बाजार जो है भारत का वो लगातार अच्छा कर रहा है. कल भी इसमें वृद्धि दर्ज हुई है, तो ये बहुत अच्छी बात मानी जा सकती है, जैसा कि आपने भी कहा. अब बहुत से लोगों को सबसे मैं सोचती हूँ कि $1,000,000, चलो डॉलर नहीं कहते, ₹1,000,000 क्वेश्चन ये होगा कि इज दिस द राइट टाइम टू बाय शेयर्स और सेल शेयर्स. एंड फॉर दैट मेनी ऑफ आवर एक्सपर्ट्स हु कम ऑफन से दैट वेल इफ यू हैव टू इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म देन मे बी इट्स फाइन, बट शॉर्ट टर्म हो तो अभी सोचना पड़ेगा. एंड वी ऑलवेज सीन दैट इफ यू वांट टू इन्वेस्ट शॉर्ट टर्म, इट्स द हाई एंड मार्केट्स, हाई एंड स्टॉक्स वेयर यू इन्वेस्ट, एंड इफ यू वांट शॉर्ट टर्म देन इट्स द स्मॉल कैप, मिड कैप, which is always there. Well, we do have an expert around us now. Shishir Sinha ji. Yeah, namaskar. Namaskar, Shishir ji, and welcome to Market Mantra. Thank you. नमस्कार सब आपको नमस्कार. मुझे सिर्फ कैपिटल गेन टैक्स के बारे में पता करना था. मैंने एक प्लॉट बेचा है, उसके पैसे मेरे बैंक में रखे हैं, उसको मैं कब तक रख सकता हूँ और उसके बाद यूटिलाइजेशन के लिए क्या कर सकते हैं हम उसको. दूसरा प्लॉट. This is Vivek calling us from Delhi. Yes, जी शिशिर जी. जमीन जायदाद के खरीद फरोख्त में अगर आप कैपिटल गेन टैक्सेशन है तो उसमें सर्टेन पीरियड के बाद, अगर सर्टेन पीरियड तक इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है. लेकिन उसके बाद करते हैं तो आपको कैपिटल गेन उस समय तक नहीं करते तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ सकता है. जहां तक अगर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, ये पीरियड 3 साल का है. 3 साल के भीतर अगर आप कर देते हैं तो फिर आपको उस पर कैपिटल गेन टैक्सेशन. All right, so I think Vivek must have found answers in that one. We are next joined by. हमारे अगले कॉलर हैं अतांशु साहा, ये कोलकाता से हैं. जी हाँ, सवाल पूछिए. हाँ सर, गुड इवनिंग, थैंक्सगिविंग टू एवरीबॉडी सर. My question is, what is hedging? What is hedging and what its tools, sir? Tools, different tools, sir. Hedging tools. Thank you, sir. तो when you say hedging, अगर मैं हिंदी में आपको कहूँ, hedging का मतलब होता है बाड़बंदी. बाड़बंदी का मतलब ये होता है कि जो आपके पास है उसकी सुरक्षा के लिए आप बाड़ लगाते हैं. तो हम लोग कई ऐसे कमोडिटीज हैं जिसमें हेजिंग की बात करते हैं. इक्विटीज में हम लोग हेजिंग की बात करते हैं. नॉर्मली क्या होता है कि आप कैश मार्केट में जो कुछ भी आपने ट्रांजेक्शन किए उसकी हेजिंग आप कैसे कर सकते हैं फ्यूचर मार्केट के थ्रू. ये सारी जो सुविधा दी जाती है आमतौर पर बड़ी कंपनियां करती हैं. जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूं, क्रूड के मामले में है, उन सब जगहों पर हेजिंग की जाती है ताकि आने वाले समय में ऊंची कीमतों से बचा जा सके. तो ये छोटे निवेशकों के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़े निवेशक हैं, वो कई तरीके अपनाते हैं जिससे आज का जो निवेश है वो कल की सुरक्षा दे.
All right, thank you so much, Ishuji, for explaining to us. Yes, a lot of people tell us that we must listen to, and we do listen to Market Mantra and get ourselves educated with all these market terms like hedging and so on. Well, we're now joined by Bharat Bhushan, another regular listener of ours, and he's calling us from Delhi. जी Bharat जी, सवाल पूछें. जी नमस्कार लालिमा मैम. नमस्कार जी. जी. अच्छा, पीछे सिन्हा सर को भी नमस्कार है सर. नमस्कार. सर, मेरा प्रश्न ये है कि जो हालिया दिनों में ऑस्ट्रेलिया ने मुक्त व्यापार नीति के उन्होंने घोषणा करी भारत के साथ, तो हमारे देश के दृष्टिकोण से यह व्यापार नीति ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हुआ और या होगा, हमारे दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है सर? हमें क्या क्या फायदे होंगे हमारे देश को? दूसरा सर, कि दूध के उत्पादन में, जैसा कि आज जानते हैं वर्गीस कुरियन जी का जन्मदिन भी है, श्वेत क्रांति के जो जनक थे हमारे देश के, तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि हम बड़े उत्पादक तो विश्व में बन गए हैं दूध के डेयरी उत्पाद में, परंतु हम निर्यातक सबसे बड़े कब बनेंगे? इस दिशा में सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि हम विश्व में बड़े निर्यातक बन पाए? धन्यवाद सर. आपके अगर पहला जो सवाल था कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौता उससे क्या फायदा है, तो देखिए अभी के समय में अगर दोनों देशों का अगर आप व्यापार देखें तो लगभग और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में ये लगभग $50 अरब तक जो है वो पहुंच सकता है. अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि क्या इसके भारत को इसको फायदा होगा? देखिए, मुक्त व्यापार समझौते में क्या होता है? मुक्त व्यापार समझौते में एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि दोनों देश एक दूसरे के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, एक दूसरे के सामान को लाने ले जाने के लिए जो कुछ सहूलियतें हो सकती हैं, जो कुछ रियायतें हो सकती हैं, वो देने की कोशिश करते हैं. तो अब इस मुक्त व्यापार से ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया के साथ जो ट्रेड करते हैं उसमें कई सारे सामान जो हैं उनमें आपको एक कंसेशनल टैरिफ का भी फायदा मिल सकता है, रियायती जो शुल्क है उनका फायदा मिल सकता है. आपका दूसरा प्रश्न जो दुग्ध को लेकर के है, और निश्चित तौर पर आज जो दुग्ध क्रांति के जनक हैं उनका जन्मदिन है, तो ये काफी प्रासंगिक है आपका आज के दिन में. हम कब सबसे बड़े निर्यातक बन पाएंगे? उत्पादक है लेकिन निर्यातक कब तक बन पाएंगे? उसमें 2-3 चीजों पे आपको ध्यान देना है कि कई ऐसे देश हैं, चाहे अगर हम लोग यूरोप के देशों की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, ये कई देश ऐसे हैं जहां पर दुग्ध और दुग्ध उत्पाद के मामले में उनकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी है. तो यही वजह है कि विश्व व्यापार में उनकी जो स्थिति है उस हम नहीं पहुंच पाते हैं अच्छे उत्पादन के बावजूद. समय लगेगा, उत्पादन हमारे यहाँ बढ़ा है, गुणवत्ता भी बढ़ी है, और आपने देखा होगा कि जो देश की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव है वो दुनिया भर के बाजारों में अपने ब्रांड को पॉपुलर कर रही है. तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि निर्यात जो है वो काफी अच्छी स्थिति में पहुंचेगा दूध के मामले में उत्पादन के साथ साथ. Yes, interestingly, Verghese Kurian was the father of white revolution in our country, and he brought about this massive production of milk. जी, मुंबई से हमारे अगले प्रश्नकर्ता हैं रत्नाकर. रत्नाकर जी, अपना प्रश्न पूछें. हेलो, गुड इवनिंग सर. मेरा सवाल है कि ये जो सीनियर सिटीजन के लिए आफ्टर रिटायरमेंट मंथली इनकम स्कीम के क्या प्लान है, LIC और पोस्टल के, ये बताइए. और जो इंडिया में मार्केट इतना ऊपर गया है, तो ऑल ओवर इंटरनेशनल मार्केट भी इतना ऊपर है कि खाली जो भारत में ही ये मार्केट की छलांग दिख रही है? जहाँ तक आपका पहला प्रश्न है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का, तो आपको पता है कि डाकघर में ये सुविधा मिलती है, और ये जो स्कीम है, स्कीम में बाकी जो दूसरी छोटी बचत योजनाएं हैं उनसे ज्यादा ब्याज मिलता है. ये एक बेहतर स्थिति आप कह सकते हैं, खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिनके लिए आमदनी के रास्ते या तो बंद हो चुके होते हैं या बहुत ही सीमित आय होती है. तो इस तरह की स्कीम्स में पैसा लगाना जो वो काफी फायदेमंद है. पोस्ट ऑफिस के और भी जो मंथली इनकम स्कीम्स हैं उनमें भी पैसा लगाना फायदेमंद है, लेकिन वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स की कैटेगरी में उसका आपको फायदा जो है वहां पर नहीं मिल पाएगा. लेकिन हाँ, फिर भी उसमें आपको मंथली इनकम के लिए जो रिटर्न है, जो ब्याज की दर है, वो काफी अच्छी हुआ करती है. दूसरा जो आपका प्रश्न है कि दुनिया भर के बाजारों में भारतीय शेयर बाजार की स्थिति, तो देखिए भारतीय शेयर बाजार के साथ एक कहते हैं ना कि एक इमर्जिंग इकोनॉमी में भारतीय शेयर बाजार की स्थिति काफी बेहतर है, और बेहतर होने की कई वजहें हैं. एक तो संभावनाएं, दूसरा विकास दर की बात करें तो आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अभी कहा भी है कि भारत जो है पूरे जो एक
माहौल बना हुआ है उसमें एक बहुत अच्छा एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर आया है, तो एक भरोसा है। और तीसरी बात यह है कि अमेरिकी जो फेडरल रिजर्व है उसने जब से ये संकेत दिए कि वो उस तरीके से ब्याज दर में बढ़ोतरी नहीं करेगा या उसमें किसी भी तरीके की अनिश्चितता की स्थिति नहीं रहेगी, तो विदेशी निवेशकों के लिए उन बाजारों की ओर रुख करना काफी आसान हो गया है। भारत एक आकर्षक निवेश का लक्ष्य है और यहाँ से काफी फायदा भी हुआ है निवेशकों को। तो यही वजह कि आप देखेंगे दुनिया के बाकी बाजारों में अगर आप बात करें, क्योंकि हम लोग जो ट्रैक करते हैं, चाहे यूरोपियन बाजार की बात करें, अमेरिकी बाजार की बात करें, यूरोप और अमेरिका की स्थिति इस समय थोड़ी सी डावाडोल है, क्योंकि यूरोप में मंदी की आशंका और अमेरिका में आने वाले समय में जिसको हम लोग कहते हैं कि माइल्ड रिसेशन की आशंका जताई जा रही है। तो इसकी वजह से वहां के शेयर बाजारों में उस तरह की आप तेजी नहीं देखेंगे जो आप तेजी यहाँ। Well, indeed, Shishir, against the backdrop of the fact that we are now the fifth largest growing economy of the world, and leaving behind UK gives us tremendous confidence. We are now joined by Sanjay, who is calling us from Thane. Ji, Sanjay ji, please ask a question. Good evening, madam. Good evening, ji. I am a regular investor in stock market. Mm-hmm. Normally, the day trading, short-term trading, and long-term trading, all these words I do understand. Mm-hmm. I want to understand more about futures and options. What exactly it is, and how a retail investor can look into it, and how they can take benefit of futures and options. देखिए, Mr. Sanjay, if I say that future and options are more for the large investors or the big investors. For retail investors, going into future and option is not a good idea. There are a number of reasons for that. One of the most important things is that it is slightly technical than the cash market or what we call as a spot market. So my suggestion would be for a retail investor, the best thing is to go into the cash market or spot market. Make transactions there. For future and option, it's not something which is advisable. If I explain the future and option, basically it's all about what is going to happen in the future. We just what you can say, we can place a bet on that by just paying a margin of that. In case if you are going to cash market, you are paying the full payment. If you are going to the future and option market, you are getting a part of that, and you also have the option of rolling over those things. So that is why I'm saying that it is slightly technical, more technical than the spot market. So for retail investors, it is not advisable to go into future and option market. They should stick to spot market, or at the best they should go to the mutual. अगले कॉलर हैं जयपुर से जितेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा प्रश्न ये है सर कि जैसे विश्व में मंदी छाई हुई है, जैसे वहाँ का सारा विश्व में, लेकिन भारत का जो विकास है आर्थिक का वो तो ठीक दिखा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो खुदरा निवेशक हैं वो कहीं ट्रैप हो रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर? अगर ये आखिरी का इन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया, मैं शायद स्पष्ट नहीं हो पाया है। ललिमा जी, आप मुझे बता सकती हैं जो वर्ड उन्होंने यूज किया है? ये कुछ क्लियर हमें भी नहीं था। हेलो, आर यू ऑन लाइन? जितेंद्र जी, क्या आप लाइन पर हैं? नहीं, आई थिंक चलिए वो चले गए हैं। लेट्स समझ पाया जितना कि जिस तरीके की बाजार में स्थिति है, जिस तरह की तेजी है, उसमें छोटे निवेशकों के लिए किस तरह के खतरे की बात है या किस तरह की आशंका की बात है। देखिए, मेरी समझ तो ये होती है और हमेशा से इस बात के लिए मैंने जोर भी दिया है कि छोटे निवेशकों को अगर शेयर बाजार में आना है तो उसके लिए म्यूचुअल फंड का रास्ता है। सीधे शेयर बाजार में खरीद फरोख्त करना काफी जोखिम है और जोखिम को आप कम कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास आइडियल है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में निवेश का फैसला एक फंड मैनेजर लेता है जो कई तरह की परिस्थितियों के आधार पर लेता है। दूसरा, म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक शेयर में निवेश नहीं होता है बल्कि बास्केट ऑफ शेयर में होता है, तो आपका रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। और जब आप शेयर बाजार में जाते हैं एक खास शेयर खरीद। Hello. Well, it's heartening also to know that as far as retail investors are concerned, we've had the maximum amount of demat accounts opened in the last few years, which has never been there before, comparatively. And that's again a very heartening situation for our country. And hello, we are trying to call Sanjay again, but hello.
हेलो जी मैडम, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कोई क्वेश्चन पूछा था लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जी अब आप सवाल पूछिए। जी संजय जी। जी ये फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बारे में मैंने पूछा था 2 मिनट पहले, तो वो थोड़ा रिपीट कर पाएंगे आप? फ्यूचर, हेलो, फ्यूचर ऑप्शंस, हेलो संजय जी। या फ्यूचर ऑप्शंस, हेलो शिशिर, आर यू ऑनलाइन? हेलो। Okay, let's take a look at the U.S. stocks for now. Stocks were mixed yesterday in a subdued holiday-shortened trading session for Wall Street as investors watched holiday spending on Black Friday to gauge consumer confidence at a time when inflation and rising interest rates are weighing heavily on Main Street. The Dow Jones Industrial Average advanced 0.45% and the S&P 500 gained 0.1%, while the Nasdaq Composite fell 0.5%. Well, it's interesting to note, Vibhuti ji, that अभी तक तो हमारे अपने ही यहाँ इतना एक समय होता है कि नवरात्र में मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज गो अप और श्राद्ध में कम हो जाता है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं ये वेस्टर्नाइजेशन का इतना इफेक्ट कि ब्लैक फ्राइडे जो आज तक एक दबा से कोई एक बात थी, नाउ यू सी दैट ब्लैक फ्राइडे सेल्स आर ऑल ओवर एंड वी आर ट्राइंग टू कॉपी द वेस्ट, एंड जस्ट एज वी हैव अ ग्रैंड फादर्स डे, ग्रैंड मदर्स डे, फादर्स डे, एंड इट्स अ बिग बिजनेस. सो ब्लैक फ्राइडे इज अगेन अ गुड अपॉर्चुनिटी और क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी for our businesses to give a fillip to our brands and to create big marketing strategies, and the numbers have gone up, and you see what's happening at the e-commerce sites that thanks to this so-called Black Friday sale, which we had heard in bits and pieces many years ago, it's now really catching up. Well, that's probably a marketing gimmick, so be it. Right now we have Vinod calling us from Saibabad, and we are back with Shishirji online. Hello Vinod ji, सवाल पूछें. मेरा सवाल ये है कि मेरे शेयर्स में करीबन 4-5 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो डीलिस्ट हुए हैं, उसके वजह से उनमें 1-1.5 लाख का लॉस है. तो डीलिस्ट वाले शेयर्स का मैं लॉस कैसे उसमें एडजस्ट करूं प्रॉफिट के अंदर, मुझे समझ नहीं आ रहा. ओके, देखिए जब शेयर डिलिस्ट हो गए तो क्या आपको अगर ऑफर दिया गया था उस शेयर को टेंडर करने का, अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी नहीं ली तो शायद आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अभी भी कुछ रास्ते खुले होते हैं एमसीए की वेबसाइट पर और सेबी के कस्टमर जो ग्रीवेंसेस रजिस्टर हैं उनके जरिए आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं. All right, we have so Shishir, what do you think? We just talked about the recession in US. You were just mentioning that. Is there no recession in the US? There is some kind of है या नहीं है, इस पे आप कुछ बात करेंगे? लालिमा जी, ये बहुत ही एक दिलचस्प सवाल आपने पूछा है या नहीं, क्योंकि टेक्निकली है. अगर हम देखें ग्रोथ रेट, क्वार्टरली ग्रोथ रेट, तो उस हिसाब से लगता है कि है, लेकिन देख रहे हैं कि जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ गए हैं, एंड अदर मार्कर्स आर शोइंग अ डिफरेंट. So that is why I use the word mild recession. So now the policy makers are using the word mild recession. Recession could be that overall GDP numbers are down for 2 consecutive quarters. That is the technical definition of recession. Right. In terms of employment generation, in terms of consumer demand, if we are seeing some growth for that particular time period. But the important thing is that what happened during the last 2 quarters, if it is down, then technically it is recession. Yes. If at present we are seeing that employment number have gone up, yes, or consumption has gone up, or the purchasing has gone up, so it could be a momentary issue. The real issue is that what is a medium term or long term or short term issue. So GDP or economy is not on a day-to-day basis. You cannot measure the economy on a day-to-day basis. You have to take a certain time period. That time period says there is a milestone. जी, हमारे अगले कॉलर गाजियाबाद से हैं गौरव जी. गौरव, अपना सवाल पूछिए. सर, दो सवाल हैं. पहला सवाल है, मार्केट इज ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई, बट मेनी गुड स्टॉक्स, मेनी ब्लू चिप्स आर नॉट ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई. जनरली ऑल टाइम हाई पे होता है तो काफी FIIs आते हैं, सो दे नॉर्मली बाय इन ब्लू चिप स्टॉक्स. So what is the reason that all good stocks, banking stocks, private banks,
and also large construction companies are not doing that well, or their stocks are not performing, trading at a value which they should be. What is the reason for this anomaly? The stock market is all-time high, but the blue chips are trading still low. And second question is about fuel, sir. India has been buying at a good discount oil from Russia, but retailers are not getting benefits because the taxpayers are not getting benefits. Maybe the poor people are maybe getting by in way of food, but taxpayers are not getting. So what is the logic behind this? Thank you. Coming to your first question, that why certain blue chip shares are not performing well, even the stock market is all-time high, it could be related with the performance of that particular company. See, at this moment, some sectors are doing very well, some sectors are not performing very well. If I take example of IT sector, you see, when the Europe is in crisis, or when we are seeing some kind of recession in the Europe, when we are seeing mild recession in US, so certainly the expenditure by companies abroad on the IT services will come down, and that will certainly affect the IT companies. So there is a possibility that some of the IT companies are not doing well, even the stock market is very high. Now coming to the other one, which is, say, basically the oil companies. I won't take the name of a company, but I can tell you, when the crude prices are up, Government of India is putting windfall tax. So when the windfall tax is there, the company's profitability will be affected. So in case the profitability will be affected, the investors will be slightly wary about that whether they should put money into that or in that particular stock or not. So that will impact the stock prices. So it depends upon the individual sector or the individual company, and also the government policy, how that is affecting. So answer to your first question is this one. The second question about the oil prices. See, still after getting what we call as a Russian crude at a discounted price, the Indian basket is still very high. One. Number two, the comfort level for reducing the price, maybe for the oil marketing companies are not bad. And third, we should also remember that it is not on a day-to-day basis you calculate the petrol diesel price. You have to take a time horizon for that. And during that time horizon, when the companies entered into contract to buy the crude, maybe the price was not at the level which will prompt them to pass it on to the consumer. We can expect and we hope that during coming days, we will see some kind of reduction in the prices of petrol and diesel at retail level, provided the crude prices are coming down on a black level. Right. दिल्ली से अगले प्रश्नकर्ता हैं धर्मवीर। धर्मवीर जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी धर्म जी, जल्दी से सवाल पूछें प्लीज, समय कम है। हेलो जी हेलो। नमस्कार। नमस्कार जी, सवाल पूछें थोड़ा जल्दी से जी। पूछना चाहता हूँ, जैसे पहले बुजुर्ग लोग कहते थे कि पहले आप सोना खरीद लीजिए, कभी भी बेच के आप उसको दोबारा रिटर्न पैसा ले सकते हैं, या कहीं जमीन लीजिए बेच दीजिए। हमें मार्केट की जानकारी ना हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं? इसके बारे में कोई बताएंगे? जैसे हम सोना खरीद ले, गोल्ड मेडल, तो जाके हम खरीद लें और फिर कभी बेचना हो तो रेट बढ़ने के बाद। देखिए, आपको एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, सोने का अगर निवेश कर रहे हैं तो गहना ना खरीदें, बल्कि सोने के बिस्किट खरीदें। वो आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि गहना बेचने जाएंगे तो मेकिंग चार्जेस वगैरह लग जाएंगे। बिस्किट में आपके पास मेकिंग चार्जेस की पॉसिबिलिटी नहीं। दूसरी बात, अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो मेरी सलाह ये होगी कि आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करें, जहां पर आपके लिए बेहतर रिटर्न की उम्मीद होती है। आपको हर साल 2.5% का ब्याज भी मिलता है, और 5 साल के बाद आप उसको इनकैश कर सकते हैं, और 8 साल के बाद वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। तो सोने में निवेश करने के लिए फिजिकल गोल्ड के बजाय आपके पास दूसरे जो विकल्प हैं उनको अपनाएं, और सोने में अगर निवेश करना है तो गहना ना। Right. Thank you, Shishir Sinha ji, for joining us and sharing your precious views with us. Thank you very much.
Indeed, we are the world's largest consumer of gold. And friends, on that note, before we close, here's a reminder of the headlines. Domestic share indices witnessed gains of about 1% in the week ended yesterday. Sensex closes above 62,250. Nifty settles above 18,500. US markets remain almost constant in a holiday-shortened trading week. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalema Aneja Dang, and Vibhuti Kumar Mishra signing off. Namaskar. Market Mantra.